Hello friends, welcome once again. In this video, first of all, I'd like to put a correction. And the correction is in the last video where I mentioned that Major General R.S. Bhadoria, who retired on 30th November 2021, has joined me as the Senior Training Advisor and Interviewing Officer. I by mistake mentioned that he was the Commandant of Selection Center Central Bhopal and President of 18 SSB. That's incorrect. He was in 22 SSB. 18 SSB is the SSB at Allahabad, which is again a commandant board, and I was incidentally posted both at Bhopal and at Allahabad. So, sir was in 22 SSB Bhopal and not 18 SSB, which is in Allahabad. That was a mistake from my side. So, sorry for that. And now, since we are speaking about SSB, let's see the location of various SSB just for the sake of understanding. The army has got selection center east, which is located at Allahabad, and it has got 5 SSB: 11, 14, 18, 19 and 34. Incidentally, I was in 11 SSB. Then you have selection center central located at Bhopal, where the SSBs are 20, 21, 22 and 33. 33 is written in blue, which is a naval SSB, and General Bhadoria was in 22 SSB, which is the commandant board, which I by mistake said 18 SSB. So that's a correction. And incidentally, I was in 21 SSB, in my first tenure. Next, Selection Center South is located in Bangalore. 17, 24 and 12 SSB. 12 SSB is a naval SSB, rest 2 are army SSB. And Selection Center North located at Kapurthala, which is a new SSB. 31 and 32 are there. That's about army. The naval SSBs, Naval Selection Board Coimbatore, Tamil Nadu mein, 12 and 33. 12 is in Bangalore along with the army SSBs, and 33 at Bhopal. And Naval Selection Board Vishakhapatnam and Naval Selection Board Kolkata. These are the recent addition. The AFOS selection boards, there are 4 of them. AFOS Selection Board Dehradun, AFOS Selection Board Mysore, AFOS Selection Board Gandhinagar, and at Varanasi. Wing Commander Sandeep Raj, who is with me as an interviewing officer, he was at AFOS Selection Board Dehradun. So that's a correction that I thought I'll make it. Now, having joined Academy for Life Skills Development as Senior Training Advisor and Interviewing Officer, has already conducted about 25 interview, and sir has shared a couple of points with me which he has asked me to communicate to the present batch, and I thought I'll communicate with all future batch students also, as well as those of you preparing by your own. Sir has given some major deficiency or common deficiency in most of the cases that he has observed during his tenure as the interviewing officer at Selection Center Central Bhopal and in the Academy for Life Skills Development also, which I thought I'll communicate for the benefit of all of you. This is going to be a little lengthy video, so I'll request you to take a pen and paper so you can make down notes, and I'll request you for each of the points that sir has communicated, I'll request you your comments. Does it apply to you? And if yes, what are the actions you're taking to correct it? So in that sense, I'll want it to be an interactive session so that I can, based on your comment, I can make more videos on that. I can also tell you what needs to be done to correct it. So let's start. Now, to understand, you have to understand that if this is the candidate, if you are the candidate and sir is the interviewing officer, the technique is called Vacha, and 90 to 95% it is the candidate who transmits and the interviewing officer who receives. He simply probes you through CIQs so that you start speaking, and जहाँ पे भी उनको लगता है कि तुम थोड़ा deviate हो गए, he will correct it. So most of the time it is the candidate who is speaking and the interviewing officer who is listening. Now, since it involves speaking, so the dominant mode of communication, since here dominant the only is your oral communication. So power of expression, oral, becomes very important here. The definition is, it is the ability of the candidate to put across his ideas adequately with ease and clarity. So it is the ability of the candidate to put across his ideas adequately with ease and clarity. What does it mean is कि अगर आपके internal clarity नहीं होगा,
अगर आपके अंदर ही क्लैरिटी नहीं होगा कि व्हाट इज द आइडिया यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, देन द एक्सटर्नल क्लैरिटी विल नॉट कम. सो क्लैरिटी दो लेवल पे है ना. लास्ट वर्ड लिखा है एंड क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ. तो पहले भीतर स्पष्टता आपके अंदर, एंड आपके अंदर कहाँ पे क्लैरिटी? विचारों में, है ना. इनर क्लैरिटी on the idea to be communicated. जब when you have that clarity, outer clarity will be the reason, and you will understand कि since interviewing officer has the liberty of cross examining in the form of the probing question, तो कुछ भी बोलने से नहीं चलेगा, people will cross question you. So it's very important that you make sure that you speak in such a manner that the other person understands it the way you want it to understand. जब तक वो नहीं होगा कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं आएगा. सो आई विल विद दिस एज द मॉडल कि यहाँ पे मैं कैंडिडेट को रखूँगा, सामने सर को रखूँगा, एंड आई लिस्ट आउट द कॉमन डेफिशिएंसीज. प्लीज नोट इट डाउन एंड सी विच ऑल इज एप्लीकेबल टू यू. फर्स्ट वन इज, सर का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इन मोस्ट केसेस candidates have very poor communication skills, that is English communication skills. There's a tendency of verbosity. What is verbosity? Using excessive words to communicate simple things. मतलब beating around the bush, जबरदस्ती शब्दों का इस्तेमाल करना लेकिन बात को कन्वे नहीं कर पाना. Poor communication skill. Now poor communication skill के कारण क्या होगा कि whatever you want to communicate, it will lack clarity, and because it will lack clarity, whether it's interviewing officer, psychologist, GTO, he will not understand what I'm being communicating. So this is a major deficiency. Like I'm speaking, when I'm speaking, I have to make sure that I understand what is my message. So you cannot communicate without clarity in your own message, and this is a major deficiency कि एंड कहीं ना कहीं बिकॉज रोट मेमोरी इस्तेमाल होता है. तो रोट मेमोरी में हम क्या करते हैं? इंप्रेशन मैनेजमेंट, OLQ दिखाने के चक्कर में कुछ भी बोल जाते हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मेरे कम्युनिकेशन को अगला बंदा हाउ इज गोइंग टू इंटरप्रेट. सो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट कम्युनिकेट विद सो मच ऑफ क्लैरिटी दैट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स द मैसेज द वे यू वांट इट टू बी अंडरस्टूड. And this is a major deficiency. You can see in this Army Headquarters letter, point number A, poor communication skill, both written and verbal, non-verbal, low intellectual and negative perception, poor journal. So all those things are there. So this is a major deficiency. It's not only for service candidate, across. So you will have to pay attention. There's no point going before such a senior officer for interview and then he says कि इस बंदे को तो बोलना ही नहीं आता. Without that, even if you have some content, even if you have some quality, it will not get projected, it will not be reflected to the person who wants to understand you. So please improve on this. And next is forgetting CIQs. आपको पता है, in the entire interview, it is analyzing your past based on your whatever you have done in your past, in parts, various parts, and it comes in a series of questions, 12 to 15. You call it rapid fire questions. Now since your grasp and retention is low, you forget it. और उसका असर क्या होता है? You keep asking him कि sir can you please repeat it, can you please repeat it. जबकि CIQs it's a standard CIQ. Everybody is asked the same CIQ, but the answers cannot be, the responses cannot be same because everybody's life experience is different. So forgetting CIQ is not acceptable. Once in a while हो गया तो ठीक है, but every time sir can you repeat, sir I forgot, नहीं चलेगा. रिटेंशन नहीं है बिकॉज आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने लाइफ को एनालाइज नहीं किया. सो लाइफ लाइन एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, क्या बोलते हैं दूसरा क्या था, जोहारी विंडो, दे आर टूल्स टू डू दिस. सो फॉर द पर्पस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आपको पता है CIQs are asked in different domain. For civilian candidates, is family and home background, educational background, work history for people who are working, spare time, hobbies and interests, general knowledge and current affairs, self. He is breaking your life into various domains and is doing it. And for service entry, similarly, there are service CIQs. Now, for the sake of your convenience, what I'll do is I'll make these CIQs available. You can go to courses.ganeshbabu.in and I'll make these CIQs available right today itself. Please go and collect it. And also there is another 2 sets of things that is available. I'll request you to watch that. It will tremendously help you to prepare yourself, and that is CIQ. I'll make it available. The second thing is indicators of OLQ in IO technique. It is right now kept free and open. Please go and watch it. I'll make for all 15 OLQ कि कैसे interview technique में how these things are
coming out. I made 2 of them. I'll make future में बाकी भी बनाऊंगा. So please go and watch it right today itself and do post your comment. And if you need any other information, they do post it so that I can include in the future video. So please watch these CIQ and indicators of OLQ at courses.ganeshbabu.in. Next, these things I will also make it available in the AFOSOP official Telegram channel. AFOSOP official type karoge, so you can join that, collect it. There are a lot of other stuffs available there. Please do collect it and make use of it, and let this deficiency be cleared before you go for actual interview, or even if you come for interview with us or the training for us. Isko bridge karke aao. Next is not paying attention to the question asked by the interviewing officer and giving either incomplete answers or roundabout manner. क्या मतलब है? आप सुनते नहीं हो. Active listening is missing. आधा सुनते हो और कुछ भी बोलना शुरू कर देते हो. गोल beating around the bush. That will not happen. This is happening because आपका मन distracted है. मन को हम घोड़े के साथ तुलना करते हैं. अगर घोड़ा है तो घोड़ा has to be stable. घोड़ा has to be stable, but unfortunately because your mind is not prepared, आपने current affairs नहीं किया, आपको भी पता है your English communication skill, your awareness of the armed forces, a lot of things are there, but you want to get recommended. मतलब you want to get recommended, but you know your preparation is lacking, so that makes your मन unstable. So that's very, very dangerous because you're going with a unprepared mind and but you want to succeed. ये बड़ा मुश्किल है, ये नहीं होगा. So you need to know how to stabilize this ghoda number 2. Ghoda number 2 will create problem for you because you can never communicate with clarity when your mind is unstable like this ghoda number 2. So I'll suggest you to watch 3 videos. SML Mind Matters, where it has told lot of things have been communicated कि कैसे इसको करना है, क्या नहीं करना है and all that. Second is development of emotional resilience. You cannot go to the SSB with an emotional need of getting recommended but logically not able to prepare for that. That's very wrong. इसको इस attitude को ही change करना है. Varna, there is no point going before an interviewing officer or psychologist GTO unprepared and expecting that he will clear you. So watch this video, development of emotional resilience. And next is self-awareness, key to success. Unless you understand what are your strengths and weaknesses, you cannot go and manage your impression by acting in front of them. Kawwa more banne se to baat nahi banegi. So these 3 topics are part of the SML module, and SML from 10th January 2022 is available online. So again online, in fact offline ko band kar diya because of the corona restrictions and social distancing and all those norms ke karan we want to reduce the strength in the batch. So SML will be henceforth available online, and to register for that 8275577650 is the number on which you do WhatsApp me and I'll get back to you with the details. And even if you don't plan to come, please go through these videos so that you know exactly kahan pe karna hai and you can improve yourself. Next is inadequate knowledge about the service they want to join. Matlab you want to join the Army, Navy, Air Force, but the basic fundamental issues about the armed forces are not known. There are some must know stuff which you have to do it. If you don't do it, तो वो आपको मतलब आप बोलोगे कि you are passionate, but there is nothing seen in terms of passion. You cannot go there without having the basic fundamental awareness. है ना? Who are the service chief, organization structure, rank structure, major weapon system, location of commands, training centers, army, military conflicts with neighboring countries, wars. Major defense acquisition, abhi theater command, CDS, whole lot of things. So those must know stuff has to be done. You cannot go unprepared on that. And service candidate who are already in service, they are ignorant. कुएं के अंदर मेंढक की तरह हो जाता है. So sorry sir, I don't know. ये बोलना कितने बार बोलोगे? Sorry sir, I don't know. Sorry sir, this also I don't know. Siachen Glacier, Aksai Chin, China Pakistan Economic Corridor, South China Sea, Galwan Valley, Arunachal Pradesh ka conflict, Chicken Neck ka military significance, China Pakistan Economic Corridor ka security implication, Israel के साथ जो हमारा relationship है, Russia, there's so much to do. वो बिल्कुल नहीं, वो ऐसे ही जाते हो, मुश्किल है. So I don't know बोलने की जरूरत नहीं. तो मैं आपसे in fact, if you feel that you can put comments and I'll make this must know, basic must know stuff which you have to do it in the courses.ganeshbabu.in.
Please go through that and make sure that you go for your interview prepared. And even if you come to AFOSOP, don't wait that you will reach here then do it. Do it and come here so that you make the best use of the interview that will be provided here. So I'll do that. Next is lacks basic general awareness related to the country or common international issues. Again, same thing. What's happening within the country, major issues, what's happening around the country with neighbors, nahi pata. That's again कुएं का मेंढक बन के जाना है. So I don't know how good is your current affairs and general knowledge and social awareness, because without that your group discussion, your lecturate and your interview में current affairs का CIQ, they will all go on a tangent, and even your ability to connect the TAT pictures with what's happening around you, that will not be there. So please improve your current affairs, GK. I hope all people who are going to come here will do it and come, rather than expecting कि उसके बिना चल जाएगा. No, please don't do that. It create a very poor impression कि a person who aspires to become a gazetted class 1 officer is unwilling to improve his awareness. No, please do that. And whether you do it or not, these people जो interviewing officers है उनके पास 2-3 papers पड़ा होता है इंटरनेट पे. वो they keep updating before you come inside. If you're from a particular place, वो अपना तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट को, तुम्हारे स्टेट को भी उनको पता दे. So aware. तो उनके पास अपने एक अवेयरनेस लेवल को इम्प्रूव करके जाओगे तो योर इंटरव्यू विल बी वेरी बेटर एंड योर एंग्जाइटी लेवल्स विल बी अंडर कंट्रोल बिकॉज प्रिपेयर्ड. आपके पास बंदूक भी है, गोली भी है. बंदूक इज भाषा, गोली इज कंटेंट. इन दोनों के एब्सेंस में यू विल फील लॉट ऑफ स्ट्रेस. सो आई होप यू विल डू इट. एंड नाउ दिस, इसमें देखो ये ऑफिशियल लेटर में पॉइंट नंबर C, पुअर जनरल अवेयरनेस, टाइम मैनेजमेंट, स्टीरियोटाइप / coach response. So don't depend too much on the coaching, because coaching unfortunately manipulates you. Instead of building your personality, they help you, manipulate the testing tools, which is very easy to do, but not very right way to do it. तो उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा. So please make sure that you improve your must know stuff, your communication skills and all those things that I'm telling you. Next is you are expected to know about basic principles of science related to your study, subject of study, especially technical entry वगैरह से जो technical question पूछते हैं. You're found wanted, मतलब you are an engineer, you're going for 10+2 TS, you want to go for the Air Force flying, but the basics are not clear. how aircraft fly, Bernoulli's principle क्या है, technical, mechanical engineering, civil engineering, basic engineering knowledge नहीं है, basic subject knowledge नहीं है. You claim that you are English honors, but Shakespeare के बारे में कुछ पूछ ले तो आपको नहीं पता. तो अपना subject, Indian education system unfortunately is based on rote memory. 3 Idiot हमें पता है. But whatever be it, there has to be a certain degree of understanding. आप लोगों का 90% आता, but when you're not able to explain whatever done in your studies, it becomes difficult. So please make sure that your basic understanding of your subjects concerned, especially the technical entry and all that, आप लोग बिना SSB अपना रिटर्न दिए आते हो तो इस डेफिशिएंसी को क्लियर करके आने में आपको फ़ायदा. So please do that. Next is lack of knowledge about the games and sports you claim to play. You say that I do this, I do that, and when they ask you some fundamental questions, है ना, अभी वो चाहिए width, dimension, वो सब पूछते हैं तो पूछते हैं. So instead of questioning why वो पूछते हैं, it is better to do it. So फुटबॉल का क्या है, बैडमिंटन क्या, whatever you play, whatever, उसके बारे में थोड़ा जानकारी करो. Who are the prominent people there, इंडिया का पोजीशन क्या है, वर्ल्ड का पोजीशन क्या, थोड़ा उस चीज़ों का अपडेट, डायमेंशंस कितना है, बॉल हाइट कितना, वेट कितना, जो भी करना वो करके जाओ, rather than वहाँ जाके सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई डोंट नो जब 4 बार बोलेंगे, कैन यू इमेजिन इसका इम्पैक्ट इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर क्या पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल जनरल भदौरिया, ही वॉज अ जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ अ माउंटेन डिवीजन, है ना. अंडर हिम देयर वर 3 ब्रिगेड्स commanded by brigade commanders, brigadier rank officer. उनके नीचे so many battalion, 9 battalion, 10 battalion and whole lot of thing. इतना सीनियर आदमी के सामने आप एक खोखला तैयारी के साथ जाके क्यों उम्मीद करते हो कि वो आपको recommend करेंगे. So please make sure you bridge that gap and go, so that whether it's an interviewing officer, psychologist, GTO feels the worth within you and they feel like recommend you rather than impression management or tips and tricks लगा के जाके आने का. So I hope you understand. So please improve your knowledge about all these things. Next is poor time management, resource management,
इंटरनेट पे जाके उल्टा पुल्टा चीज़ें, रिकमेंडेड कैंडिडेट, नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट, इवन हम लोग भी उल्टा उल्टा देते हैं। आप उसकी कोई क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी को वेरीफाई नहीं करते हो, कुछ भी उसको इलॉजिकली करके जाते हो, अपने टाइम को बर्बाद करना, मतलब इंटरनेट पे पबजी खेलते रहना, इंटरनेट करना, व्हाट्सअप करते रहना, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं करना। ऑलमोस्ट 1.5 साल का लॉकडाउन था, उसको इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाना, 4 बार एसएसबी चले गए लेकिन कम्युनिकेशन को डेवलप नहीं करना, स्ट्रेस हैंडलिंग नहीं करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप नहीं करना, बस वो टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में लगे रहना। इट्स कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम। बैकलॉग आया हुआ है, पढ़ाई में टाइम नहीं, फालतू चीज़ों में, डिस्ट्रैक्शन में मन भटक रहा है। एसएसबी में जा रहे हो, पता मेरे अंदर ये डेफिशिएंसी है, लेकिन नो प्लानिंग, नो एक्शन, बस रेकमेंड होना है। तो दैट शोज दैट यू आर लैकिंग दैट एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज योर रिसोर्सेज इफेक्टिवली। बस मुंह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सर मैं पैशनेट हूँ, बट कहीं वो पैशन एक्शन में दिखता नहीं है। दिस नीड्स टू बी करेक्टेड। आई डोंट नो इफ इट इज़, जो लोग सुन रहे हैं, कि आपके लिए भी ये लगता है, आपको भी 24 घंटे में, इनफैक्ट CIQ में, वन ऑफ द CIQ दे आस्क व्हाट इज़ योर रूटीन ऑन ए डेली वर्किंग डे, ऑन ए हॉलीडे। और सर्विस कैंडिडेट से पूछते कैसे आप ऑर्गेनाइज किया, क्या तैयारी किया, करंट अफेयर्स के लिए कैसे किया, व्हाट विल यू से एवरी टाइम कि आई डोंट हैव टाइम, दैट मे नॉट वर्क। सो नेक्स्ट इज टू क्रिटिकल ऑफ फ्रेंड्स, टीचर्स, सिबलिंग, पेरेंट्स, मतलब हाइपर क्रिटिकल एटीट्यूड, सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, लोगों, सोशल इंटेलिजेंस की कमी, लोगों से उठना बैठना, लोगों से बातचीत, कैसे बात करना है, एक सोशल कम्युनिकेशन को कैसे इनिशिएट करना है, कैसे सस्टेन करना है, दोस्तों के लिए हाइपरक्रिटिकल एटीट्यूड, माँ बाप के लिए हाइपरक्रिटिकल एटीट्यूड, दैट विल नॉट वर्क, है ना। एवरीबडी हैज गॉट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। योर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट एंड हैविंग अ बैलेंस्ड व्यू ऑन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट मे नॉट वर्क। और ये एक मेजर प्रॉब्लम है, एंड कोरोना हैज़ ऑलरेडी मैग्नीफाइड इट बिकॉज आवर इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन इज रिमूव्ड। अभी तो फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, but during the lockdown 1 and lockdown 2 we were so close that all our social contacts had broken except for technology use करके हम कर सकते थे, physical was not there, so negativity आ गया है, and this needs to be fixed. Next is socially either slow mixers or very conservative, you know, isolation में अपने आप में मोबाइल पे लगे रहते हो, सोशल इंटरेक्शन फेस टू फेस नहीं, फेसबुक में लगे वो 2000 दोस्त का है, लेकिन फेस टू फेस में एक भी नहीं है। सो यू नो, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रीम इंट्रोवर्जन, आइसोलेशन में रहना, अलूफ रहना, लोगों से मिक्स नहीं हो पाना। आई टेक टाइम टू मेक फ्रेंड्स, है ना, आई वेट फॉर अदर्स टू कम एंड मेक फ्रेंड्स विथ मी, आई कैनॉट इनिशिएट ए कन्वर्सेशन एंड मेंटेन इट। मुझे लोगों से सोशल एंग्जाइटी है। सोशल एंग्जाइटी मतलब लोगों से मिलने से मुझे घबराहट होती है, मैं अकेले में रहना पसंद करता हूँ, अपने शेल के अंदर अपना मोबाइल में खेलता रहता हूँ। So that this tendency is anyway not good in civil also, but in case of armed forces where we work as a team, these kind of people are not preferred and they will have problem in adjusting in the defense environment. So if you're one of those, these are all emotional issues, these can be highly corrected. So in case you're part of the SML program, there is a complete module on this, you know, relationship management, interpersonal management, emotional management, interpersonal conflict management, all those stuff. So you can tremendously benefit through those foundation program rather than simply, you know, working on the testing tool. GTO फट्टा बल्ली करने से नहीं होगा. So contact me at 8275577650 if you wish to join the 10th January 2022 batch, SML batch online, and offline SSB batches are available. So you can contact me on the same number. नेक्स्ट इज डिस्प्ले ऑफ नर्वसनेस एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी, है ना। नर्वसनेस ये किस लिए आ रहा है? जब आप सर्जिकल स्ट्राइक में जा रहे हो पाकिस्तान के अंदर और आपको पता है आपके पास बंदूक भी नहीं है, गोली भी नहीं है, नेचुरली नर्वसनेस आएगा। ठीक उसी तरीके से ये गोइंग फॉर एसएसबी और आपको पता आपने प्रिपरेशन नहीं किया, आपके ये सब डेफिशिएंसी है, उसके बाद भी आप रेकमेंड होना चाहते हैं, नेचुरली यू विल बी नर्वस, यू विल बी अंडर कॉन्फिडेंट। मेरा आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब मेरे पास गोली भी है और बंदूक भी है, लेकिन मेरे पास ना गोली है ना बंदूक है, तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? सो लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस इज वन ऑफ द मेजर। आपको पता है इंग्लिश कम्युनिकेशन चाहिए, आपने उसको डेवलप नहीं किया, कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? नर्वसनेस तो आएगा ही। 14 दिन में धक्का मार के लोग इतना इम्प्रूव कर लेते हैं,
तो अगर आप इसको एक लंबे पीरियड के लिए करोगे, हाउ इफेक्टिव इट विल बी. सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पे अटेंशन टू दिस. एंड अनलेस यू पे अटेंशन टू दिस, ये नर्वसनेस एंड आत्मविश्वास की, देखो अगर मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी है और मुझे पता चलता है वो डेफिशिएंसी, नेचुरली थोड़ी देर के लिए वो कॉन्फिडेंस को नीचे करता है. उसको ऊपर करने का एक ही तरीका है, टू गेट ओवर दैट. उसको ठीक करो, उसको फिक्स करो. बट उसको फिक्स करने की जगह कोचिंग में ही बताया जाता है उसे हाइड कर लो. सुसाइड को हाइड करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो फिर कहाँ से ये नर्वसनेस जाएगा. सो दैट्स नॉट द वे. यू हैव टू फिक्स दोज इश्यूज. सो विल डू दैट. Next is, do not look into the eyes of the interviewing officer. अब देखो, you are going for an SSB interview. It is one candidate and one interviewing officer. 95% you are speaking, but you are not able to look into. जैसे अभी right now I'm looking into the camera. अभी मैं ऊपर देख रहा हूँ, ऐसे देख के बात कर रहा हूँ, कभी ऐसे कर रहा हूँ, कभी ऐसे कर रहा हूँ. This will not work. You have to look into. That shows that you're confident. You know what are you speaking. You have that capacity and self belief. That's why you're able to look into the eyes of the वो. आप ऐसे ऐसे आँख इधर उधर टरकाते रहते हो, मटकाते रहते हो, डांसिंग आई बोलते हैं. नो, दैट विल नॉट डू. सो उसके लिए ये तभी आएगा व्हेन यू बिल्ट अप योर सेल्फ. जब आपके अंदर से मजबूती आएगी तो आई कॉन्टैक्ट नेचुरली आएगा. इसको आर्टिफिशियल, मैं झूठ बोल रहा हूँ इंटरव्यूइंग ऑफिसर से आँख में देख के, इतना नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे अंदर वो आत्मविश्वास ही नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता मैं झूठ बोल रहा हूँ. सो आई कांटेक्ट के लिए आपको अपने ऊपर जितना काम करोगे, जितना इन चीज़ों के ऊपर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझोगे, एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज़ टू डू विथ योर इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड. अब आप झूठ मक्कारी करोगे तो नेचुरली आँख पे देख के कैसे बात करोगे, सच ए सीनियर पर्सन. सो दिस इज ऑब्जर्वेशन कि कैंडिडेट का आँख डांस करता रहता है, इधर उधर मटकता रहता है. क्यों? क्योंकि वो अंडर कॉन्फिडेंट है. कमरे के अंदर आता तो आँख में आँख नहीं मिला पाता. सिर के ऊपर से देखता है, सिर आँख कानों के साइड से देखता है, टेबल पे देखता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, लेकिन आँख में नहीं देखता. तो आप भी चेक करो. लेक्चरेट में भी देखा, हाथ पाँव काँप रहे हैं लोगों के, बोला नहीं जा रहा, गला सूख रहा है. ये सब क्या है? ये सब आत्मविश्वास की कमी है या आत्मविश्वास का एग्जिस्टेंस है? आप खुद ही चेक करो. नेक्स्ट इज डिस्प्ले डिपेंडेंसीज ऑन अदर्स फॉर डिसीजंस एंड सपोर्ट. निर्णय लेने की क्षमता को डेवलप करने की बजाय डिपेंडेंसी. इवन कोचिंग में भी, एसएसबी कोचिंग में, कहानियां आप लिखने की बजाय कहानियां लिख के दे रहे. कैसे फिर आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लोगे? अप्रूवल सीकिंग टेंडेंसी. अप्रूवल सीकिंग मतलब खुद पे विश्वास नहीं है, तो हर छोटी चीज पे सर मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सब मेरा टीएटी ठीक है. दैट कैपेबिलिटी टू take charge of your decisions, वो डेवलप करना है. सो इफ यू कम टू एसएमएल, वी हैव दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मॉड्यूल्स. तो जब तक हम अपने इनर प्रोसेस को, MIS ऑफ सेल्फ इज वन सच मॉड्यूल, MIS ऑफ सेल्फ, जिन लोगों ने एसएमएल किया उन लोगों से बात करना, जब तक वो नहीं आएगा, आप जैसे वो देखो उसके सिर में वो बंदा उसके टांग में खींच रहा, बोला मुझे भी ले जा, ऐसे बैसाखी पे थोड़ा ना होगा. सो learn to take decisions, whether it is right or wrong, they should be your decisions, and each decision will come with a consequence. अगर गलत हो गया तो उसको एक्सेप्ट करने की ताकत चाहिए, बट वो नहीं होने के कारण क्या होता है, इनेबिलिटी टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, घबराहट, डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग, और एक सेल्फ डाउट कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ. दैट हैज टू बी फिक्स. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग, डिस्प्ले ऑफ एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, अंदर से घबराहट, मतलब एसएसबी इंटरव्यू देने आ रहा है या बकरी का गला काटने जा रहे हो, इतना घबराया हुआ है, डर रहा है अंदर घुसने के लिए. क्यों? 1-to-1 बात करना, मुझे बात करना नहीं आता, क्या बोलना नहीं आता, CIQ रट के आया हूँ, करंट अफेयर्स नहीं आता. नेचुरली व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, योर माइंड विल गेट इनटू दिस पैनिक मोड. तो डिस्प्ले ऑफ एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस इज सिंपली, मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस. अब आप प्रिपेयर भी क्या करते हो, रोट मेमोरी बेस करोगे तो काउंटर क्वेश्चन में फंस जाओगे, रट के जाओगे तो रटा हुआ हिस्से में तो कॉन्फिडेंस से बोल दोगे, लेकिन जब प्रोबिंग क्वेश्चन आएगा आप फंस जाओगे. सो देयर इज अ मेथड टू डू इट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड प्लीज गिव मी फीडबैक, क्या समझ में आ रहा है. नेक्स्ट इज डिगिंग देयर ओन ग्रेव बाय स्पीकिंग मोर देन व्हाट हैज बीन आस्क्ड. ना सर का एक ऑब्जर्वेशन हमारे यहाँ पे 2-3 लड़कों को है, पूछते कुछ है और बोलता कुछ है. मतलब देयर आर सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो कि अनवारंटेड है, बट व्हेन यू डिस्क्लोज इट, it unnecessarily asks lot of counter question. I'll not give you an example here because ये वीडियो लंबा ऑलरेडी हो रहा है. तो आपको जो पूछा है वो नहीं बोलते, कुछ और भी बोल जाते हो अलग थलग से. जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, एक लड़का था, उसका नाम भूल गया, पता नहीं, अमित था शायद, क्या है, अभी सर के साथ यहीं पे, अभी सर के ज्वाइन करने के बाद उससे उसके 3 दोस्तों के नाम पूछे, बेस्ट फ्रेंड, तो उसने बता दिया, बोला फर्स्ट वाले के
स्ट्रेंथ्स बता, वो स्ट्रेंथ की जगह वीकनेस बताना शुरू कर दिया। बोला मैंने तो पूछा ही नहीं। बोला अरे सर मैंने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान नहीं दिया? अब क्योंकि बोल दिया तो उसके ऊपर 4 सवाल। इट इज़ लाइक आप अपना ही गड्ढा खोद के खुद ही घुस रहे हो। सर्टेन इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना कि कैन बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव, एंड अनलेस यू डिस्क्लोज इट he may not be able to find it out. But you be careful what needs to be given, what not to be given. We'll talk about that. I'm not asking you to hide, but I'm telling you certain information you must know it will have consequences. और आप बिना पूछे ही बोल रहे हो। अगर वो पूछ रहे हैं तो बताओ, नहीं पूछ रहे तो जबरदस्ती क्यों बता रहे हो? आ बैल मुझे मार। So I don't know what you've understood. Give me a feedback on this point. इस point के ऊपर मुझे feedback बताना कि अपना ही कब्र खोदने वाली बात है ना, getting caught up in your own words. खुद के जाल में फंस जाते हो ज़्यादा चटकी बन के। No, give what is asking. When he asks for probing question में evidence to certain thing, come with the evidence. सट्टा मारते हो वो नहीं चलेगा। Next is deliberately hiding facts या lying, मतलब झूठ। आपको पता है आप फंस चुके हो फिर भी झूठ बोल रहे हो। सच की नाव हिलती है डुलती है मगर डूबते नहीं हो। इतना सीनियर बंदा है, ही हैज कमांडेड अ डिवीजन। आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखना आर्मी का, ही वाज अ डिविजनल कमांडर। इनको आप गोलियां दे रहे हो, इनसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मार्क्स 98 था 10th में, उसके वो 47 हो गया 12th में। देयर इज अ शार्प ड्रॉप। अरे आप बताओ ना क्या गलती है? आप बोलते हो माँ को लुकोनुम में हो गया, माँ का हार्ट धड़कता है। ऐसे बोलने से कैसे होगा? फिर थोड़ी देर के बाद बोलते माँ को क्या बीमारी? बोले किसकी माँ को? अरे यार तुमने बोला तेरी माँ को कुछ बीमारी। अच्छा वो भूल गया। क्योंकि मैंने तो झूठ बोला। अब पता नहीं उन्होंने नोट कर लिया। सो व्हाई गेट इनटू ट्रैप? उसमें क्या होगा, आपके ग्राउंड बड़े शेकी हो जाएंगे। एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, उसकी बजाय सच बोल दो यार। खत्म सर, मुझसे गलती हो गया, आई एम सॉरी सर, मेरा ये गलती हुआ था, आई रियलाइज करेक्टेड इट, रादर देन डिली डाली करने के लिए। सो आई डोंट नो आप लोग भी झूठ का सहारा लेते हो। कोर क्वालिटी छुपाने के लिए बोलते हैं लोग, गलत बोलते हैं। तो मुझे बताने क्या समझ में आया। सो डोंट हाइड फैक्ट्स, बिकॉज इफ यू आर कॉट, आपका इंटरव्यू लगभग खत्म ही हो जाएगा। एंड किसके साथ आप छुपा रहे हो? वो बंदा जिसने आपको रेकमेंड करना, उन्हीं को गोली दे रहे हो, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज, भैया हिंदुस्तान की फ़ौज में ऑफिसर बनना चाहता है, हिंदुस्तान की फ़ौज में क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनना चाहता है, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं करना, अपने आप को ग्रो नहीं करना, बुक रीडिंग हैबिट नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है, मैगजीन पढ़ने की आदत नहीं है, फालतू का टिकटॉक करते रहते हो, यूट्यूब देखते रहते हो, पबजी खेलते रहते हो, ऑफिसर बनने की चाहत कोई नहीं। नो, सेल्फ डेवलपमेंट बुक, यू क्लेम यू रेड शिव खेरा का बुक, यू क्लेम्ड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अब्दुल कलाम का ये बुक पढ़ा, वो पढ़ा, ये पढ़ा, बट व्हेन यू आर क्वेश्चन यू डोंट नो व्हाट इज दैट। आपको ये नहीं पता कि उस बुक में कोई एक एस्पेक्ट जो तुमने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। सो आई विल सजेस्ट यू टू रीड इट। उससे आपका रीडिंग हैबिट बढ़ेगा, वोकैबुलरी बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा, गोलियां बढ़ेगी, आपके कंटेंट में स्ट्रेंथ आएगा। सो इनफैक्ट देयर इज ए वीडियो ऑन द AFOSOP यूट्यूब चैनल, हॉबीज एंड इंटरेस्ट करके, वेयर आई हैव लिस्टेड अबाउट 28 बुक्स, सिंपल बुक्स, इनफैक्ट ऑल ऑफ देम आर हियर, जिसको कि आप शुरुआत कर सकते हो। एंड व्हेन यू रीड इट यू कैन एटलीस्ट से सर मेरा हॉबीज और इंटरेस्ट पहले कोई नहीं था, लेकिन ऑफ लेट आई हैव स्टार्टेड दिस करके बोल सकते हो। प्लीज वॉच दैट वीडियो, हॉबीज एंड इंटरेस्ट करके। दैट अबाउट 28 बुक्स दैट आई हैव रिकमेंडेड, वेरी सिंपल बुक्स, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बुक। तो डू दैट रादर देन ऐसी गोली देके कि सर मैं पढ़ता हूँ, पूछा क्या सर कुछ नहीं पढ़ता, फिर क्या फ़ायदा। सो डू दैट। नेक्स्ट इज नो हॉबीज एंड इंटरेस्ट। देखो, अगर आप एक गरीब परिवार से जहाँ पे आर्थिक कठिनाई है, समझ में आता हॉबीज एंड इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन व्हेन यू फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, व्हेन योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड इट, आप कर्नल साहब के बेटे हो, आपके पापा सिविल सर्विसेज में, आपके पापा डॉक्टर हैं, पैसे वाले हो, सब कुछ है, टाइम भी है, फिर भी कोई हॉबीज इंटरेस्ट, सब मोबाइल में घुसे हुए हैं, तो क्यों नहीं है? इनफैक्ट CIQ में क्वेश्चन भी है, व्हाट आर देयर इज अ फुल CIQ ऑन हॉबीज एंड इंटरेस्ट, मैं आज उसको शेयर कर दूंगा, प्लीज वॉच इट। हाउ डू यू आंसर दैट व्हेन यू हैव नो हॉबीज एंड इंटरेस्ट? पूरे कोविड में 1.5 साल आप पढ़े रहे, क्या किया? देयर इज नो हॉबी एंड इंटरेस्ट। फिर झूठ बोलते हो कि आई डोंट गेट टाइम सर, फॉल्स क्लेम करते हो, गार्डनिंग करता हूँ, कुकिंग करता हूँ, मैगी बनाते हो, अंडा बनाते हो, बोलते हो कुकिंग करता हूँ, गार्डनिंग के नाम पे गमले में एक मिर्ची का पौधा, उसमें पानी आधा पिया वाला डाल देता हूँ, गार्डनिंग हो गया। झूठ बोलते हो। They are going to question you. So if nothing else, please pick up book reading as a hobby, because that's the easiest that you can do.
सो वॉच द वीडियो जो मैंने पिछले साइड में बोला था, व्हाट इज दैट, हॉबीज एंड इंटरेस्ट वाला वीडियो AFOSOP के यूट्यूब चैनल में. नेक्स्ट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, कंफर्ट जोन में फंस जाना. प्रोक्रेस्टिनेशन, हर चीज को डिले, अभी नहीं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे. कंफर्ट जोन मतलब मैं अपने इतने कंफर्ट जोन में पड़ा. देखो, यू कैन नॉट ग्रो इफ यू डोंट ब्रेक योर कंफर्ट जोन. सो SML में देयर इज अ कंप्लीट मॉड्यूल ऑन दिस, breaking the comfort zone, circle of influence, circle of concern, systems approach to problem solving and all the stuff. सर्प दृष्टि, गरुड़ दृष्टि. जब तक आप इस एटीट्यूड को चेंज नहीं करोगे, ये एटीट्यूड इन लोगों को दिखेगा. दे आर सच सीनियर पीपल, दे हैव कमांडेड डिविजन्स. तो हम और आप क्या इनको बेवकूफ़ बनाएंगे? इनके अपने बच्चे हमसे बड़े होंगे, तुमसे बड़े होंगे. तो बेवकूफ़ बनाने की जगह क्यों नहीं हम सुधार लेते अपने आप को. सो प्रोक्रेस्टिनेशन, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू प्रोक्रेस्टिनेट. हर चीज़ को डिले, आज नहीं, कल करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे, SSB आ रहा, कोई नहीं, देखा जाएगा, हो जाएगा. कैसे हो जाएगा? फॉल्स कॉन्फिडेंस. मूर्खों का एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता. तो मूर्खों वाले कॉन्फिडेंस से क्यों जा रहे हो? सर्जिकल स्ट्राइक जा रहे हो, वेपन नहीं है, एम्युनिशन नहीं है, फिर भी प्रोक्रेस्टिनेशन. सो मुझे बताना आप में से कितनों को प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम है, एंड व्हाट इज द एक्शन यू आर टेकिंग. नेक्स्ट इज टू मच ऑफ लुकिंग फॉर शॉर्टकट. मतलब इतना बड़ा लक्ष्य कन्याकुमारी से ले जाना, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं चलाना, सर्विसिंग नहीं करना, खुद को नहीं करना, शॉर्टकट मारना, टिप्स एंड ट्रिक्स. गलत. इतना टिप्स एंड ट्रिप्स देखोगे, अरे थोड़ा बहुत समझ में आता, बट इतना ना देखो कि कुछ भी नहीं करा फिर भी ऑफिसर बनना चाहते हैं. मेरे पास लड़के लड़कियां भी आए हुए हैं. कुछ लड़के लड़कियों को समझ में नहीं आता, मतलब ये वो, मुझे तो लगता है वो सिर्फ मुझे पैसा देने के लिए आया है. अरे कुछ भी नहीं किए, ना करने की क्षमता रखते, ना करना चाहते, बड़ा ऑफिसर बनना चाहते. और हम उन्हें बेवकूफ़ बनाते, नोट्स पकड़ाए थे, बोले इसे रट लो बेटा, इसे रट लो, 10 PGT 10 HGT करा देंगे, सुसाइड को छुपा देंगे, तुम ऑफिसर बन जाओगे. कैसे बनोगे यार? 3.6 तो क्लियरेंस है. सो शॉर्टकट कितना देखोगे? तुम फौज में आ गए तो क्या शॉर्टकट से अपने मिलिट्री ऑपरेशन को करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल. You have to work hard and really know where to work hard. There has to be an effort alignment. So ये सर का ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे साले मतलब इंटरव्यू के लिए आए, कुछ पता नहीं, बस ऑफिसर बनना है, पैशनेट हूँ, बोलता पैशनेट हूँ, कैसे वो पता नहीं. That will not work. I don't know whether it is applicable to. क्या आप भी शॉर्टकट देख रहे हो? आप कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स देख रहे हो? आपके अंदर वीकनेसेस है कोर क्वालिटी में, क्या आप उसको टिप्स एंड ट्रिक्स से करना चाहते हो या ठीक करना चाहते हो? अगर आप में ये सब डेफिशिएंसी है, आई सजेस्ट यू SSB जाने से पहले नहीं, 2-3 महीने पहले से शुरू करो. आई सजेस्ट यू टू जॉइन द सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप क्लास विच स्टार्टिंग ऑन 10th, बिकॉज ओपन योर आइज. ये तो मैं एकदम ट्रेलर दिखा रहा हूँ, ट्रेलर से आपको समझ में आ रहा तो कम देर यू विल, आई एक आईना दिखा दूंगा कि वेयर डू यू स्टैंड. यू मस्ट एग्जैक्टली नो कि SSB का एक्सपेक्टेशन आपसे किधर है और आपका प्रेजेंट लेवल किधर है और कितना गैप है. I made a video last time, claimed value, demonstrated value and expected value. There's too much of a difference between your claimed value and your demonstrated value and what is expected. तो वो अगर वीडियो नहीं देखा तो देखना, and request you to kindly bridge it up. इतना बड़ा लक्ष्य है, इतना शॉर्टकट क्यों देख रहे हो? नेक्स्ट इज टेंडेंसी टू अवॉइड फिजिकल हार्डवर्क. शरीर से मेहनत नहीं करना चाहता, सॉफ्ट हो गया आजकल सब. हमारा लाइफ इतना कंफर्ट जोन हो गया कि इस तरह के मोटे की तरह पड़ा रहता है, देखो उसके सिर पे. मतलब फिजिकली एक्सर्ट नहीं करना चाहते हो, गेम्स नहीं, स्पोर्ट्स नहीं, फिजिकल, सुबह उठना, भागना दौड़ना नहीं. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल इमोशनल वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल डायमेंशन में. यू वांट गो टू द आर्म फोर्सेस, लेकिन वहाँ जाके फिजिकली अड़ जाता, ओवरवेट है, अंडरवेट है, ओवरवेट है, फिजिकली वो नहीं, अपर बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, रस्सा नहीं चढ़ पा रहे हो, मतलब शरीर से थके हुए और जा रहे हो फौज में, है ना. 2015 में आई टोल्ड यू, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, 40 बॉयज हैड लेफ्ट NDA बिकॉज NDA का कमांडर उस टाइम में बड़ा स्ट्रिक्ट था. अगर मैं बोला ट्रेनिंग एकदम फौजी की तरह होगा, बंदे भाग के बोला हमसे नहीं होगा. क्या फ़ायदा है SSB जाने का, इतना सब कोचिंग वोचिंग करके? अरे GOR और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल से फिजिकल फिटनेस नहीं होता. फिजिकल फिटनेस होगा तो GOR इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो जाएगा. वो तो हम कोचिंग ने कर दिया वो वाला, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड फिजिकल फिटनेस. तो आई इनफैक्ट मेक ए सेपरेट वीडियो कि SSB एंड एकेडमी क्या एक्सपेक्ट करता है ना. दे एक्सपेक्ट यू टू डू 5 किलोमीटर ऑफ जॉगिंग ऑब्लिक रनिंग एवरी डे, यू नो, सम बेंचेस, सम पुल अप, सम सिट अप्स, ऑल दोस थिंग्स आर देयर. उसको करो, सम एक्टिविटी, एक डेढ़ घंटा लगाओ अपने फिजिकल डेवलपमेंट में. देयर इज अ टेंडेंसी नॉट टू एक्सर्ट फिजिकली, कंफर्ट जोन में फंस गए. आई डोंट नो आपके साथ भी एप्लीकेबल है. सुबह 6 बजे का अलार्म लगता है, वॉकिंग जाएंगे और उसके बाद जैसे ही अलार्म बजता है उसको बंद करके फिर सो जाते हैं.
So that has to change. Lazy and excessive fear of failure even when not prepared. Now this is very strange. किसान ने खेत में बीज नहीं बोया लेकिन फसल नहीं मिलने की चिंता. जब आपने प्रिपरेशन ही नहीं किया, आपकी अपनी नजरों में आपको पता कि यू आर अनप्रिपेयर्ड, स्टिल यू वांट टू गेट रिकमेंडेड. नो, खैरात में तो नहीं होगा. खैरात में तो नहीं होगा. यू हैव टू गिव देम व्हाट दे वांट, बट आपको पता ही नहीं उनको क्या चाहिए. आपको लगता है उनको TAT-WT चाहिए. नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए. दे आर टूल्स टू टेस्ट योर पर्सनालिटी. आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. वॉट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग सच इरेशनल फियर्स व्हेन यू नो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. लैंग्वेज नहीं, नॉलेज नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, स्ट्रेस हैंडलिंग नहीं, इमोशनल बैलेंस है, फिर भी रेकमेंड होना चाहते हो. सुसाइडल टेंडेंसी वाला भी रेकमेंड होना चाहता है. नहीं होगा यार, वो नहीं होगा. सो फियर ऑफ फेलियर हम सबको होता है, मुझे भी होता है. बट फियर ऑफ फेलियर व्हेन नॉट प्रिपेयर्ड, दैट्स इरेशनल. So perceived fear and real fears, there's a difference. Perceived fear is ये आपका दिमाग का उपज है, but real is you can understand. But then when you know you're not prepared, the failure is going to be real. फिर किस लिए चिंता करना है? तो ये एक faulty attitude of this needs to be fixed. Next is distorted oblique inaccurate understanding of SSB. जैसे वो 6 blind men and the elephant है, हर बंदा एलिफेंट को अपनी तरह से समझ रहा है. SSB को आप समझते ही नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं SSB को आज यू परसीव इट एज TAT-WT SRT GTO फट्टा बल्ली. नो, इट्स नॉट दैट. TAT-WT नहीं है, उसका एक दूसरा पहलू है. तो एक वीडियो का रेफरेंस दे रहा हूँ, परसेप्शन मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इम्प्रूव सिलेक्शन. इस वीडियो को देख के आना. परसेप्शन मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इम्प्रूव सिलेक्शन. सिक्के के दूसरे पहलू को देख ही नहीं रहे. आप एक बहुत फंडामेंटल गलती कर रहे हो. हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं. आपको पता है रिकमेंडेशन 3.6 है. इसका मतलब है जिस नज़र से आप SSB को देख रहे हो, जिस नज़र से SSB वाले ऑर्गेनाइजेशन देख रहा है, उसमें डिफरेंस है. डिफरेंस नहीं होता तो इतना लो क्लियरेंस रोड ना होता. लेकिन द प्रॉब्लम इज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप वास्तव में SSB को समझना चाहते हो या डरते हो उससे? कभी कभी सच से घबराहट होती है तो हम सोचते हैं कि सच देखे ही ना. हम अपने ही झूठ में खुश रहते हैं क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन है. आई एम आस्किंग यू, AFOSOP के वीडियोस में अभी जैसे सर ने ये पॉइंट दिए, ये सब वास्तविकता है, लेकिन ये आप नहीं देखना चाहते हो तो फिर आप वही साइड देख रहे हो जो आप देखना चाहते हो, वास्तविकता को नहीं देख रहे हो. सो दैट्स योर सब्जेक्टिव ट्रूथ. तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप कड़वा सच सुनने की क्षमता रखते हो या मीठा झूठ से ही काम चलाना चाहते हो? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ. कमेंट में डालना कि सर ने ये पॉइंट क्यों दिया. डिस्टॉर्टेड ऑब्लिक इनएक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ SSB. किसी भी SSB का बुक को ले लो, मोस्ट पॉपुलर में फर्स्ट चैप्टर में लिखा होगा स्टेज 1 TAT-WT SRT साइकोलॉजिकल GTO फट्टा बल्ली. वेयर इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्टिंग टूल है, और वो भी वहाँ पे भी टिप्स एंड ट्रिक्स. कोर क्वालिटी हाइड कर दो. दैट्स नॉट SSB. एनीवे, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. स्वयं को नहीं पहचानता, गूगल करता है. ही सर्चेस इन द गूगल व्हाट आर दी मेजर क्वालिटीज ऑफ ए गुड मिलिट्री ऑफिसर. जो आता है वो अपने में लगा देता है, रिकमेंडेड कैंडिडेट से लेता है. जो व्यक्ति स्वयं को नहीं पहचानता वो दूसरों को कैसे पहचानेगा? जब आप खुद को प्रेरित नहीं कर पाओगे, दूसरों को कैसे करोगे? सो लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. 3 मॉड्यूल जो SML का है, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डू इट इवन इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर SSB. दोज आर जोहारी विंडो, सेकेंड इज लाइफलाइन एनालिसिस, एंड द थर्ड इज व्हाट इज द थर्ड वन, SWOT एनालिसिस. और एक सेकेंड वीक का, दूसरे वीक का है MIS ऑफ सेल्फ. आई सजेस्ट ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, मैरिड कपल, वर्किंग प्रोफेशनल, SSB, non SSB, go through that. It will tremendously help you to understand yourself. So do that. Lack of self-awareness will not be accepted. Next is unsubstantiated claims not backed up with evidence from life. बड़े बड़े स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बोलना, डिटरमाइंड हूँ, करेजियस हूँ, ट्रस्ट वर्दी हूँ, मैं फादर थिंग्स हम ऐसा हूँ, वैसा हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, पैशनेट हूँ, लेकिन CIQ में चेक करो, लाइफ से एविडेंस पूछो, नहीं बता पाता. तो ऐसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लिखने का क्या फ़ायदा जो वास्तव में आपके पास नहीं है? आप लेफ्ट राइट से लाते हो और जब उसके ऊपर प्रोबिंग होता है यू आर कॉट कंप्लीटली ऑफ गार्ड. क्या मतलब है? तो इससे बढ़िया है अपने आप को पहचान लो. तो नॉट एबल टू जस्टिफाई योर क्लेम्स थ्रू एविडेंस फ्रॉम लाइफ,
जीवन से उन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का एविडेंस नहीं ला पाते हो, वहाँ बैठ के सर याद नहीं आ रहा, क्या फ़ायदा फिर, ऐसे क्यों लिखा फिर आपने। तो इसे ठीक करना है। ये मेरा पॉइंट्स नहीं है, सर ने दिए हैं। मेरा पॉइंट तो खैर मेरा भी यही है, टीएटी में भी यही होता है। देखो, एक बंदा एक डंडे से 20 हाथी भगाएगा, इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। किशन 12वीं में पढ़ता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हॉकी मैच करता है, इज इट पॉसिबल? नो। तो वही चीज़ यहाँ पे साइक भी बोल रहा है, वही चीज़ इंटरव्यू बोलता है। Anyway, next is inability to analyze events and synthetic situation presented. Basic analytical skills develop नहीं है, critical thinking, creative thinking, cause effect relationship, law of karma में जो सिखाते हैं नहीं कर पा रहे हो। I'll suggest you SML के ये modules को करो, you will tremendously benefit out of this. So interview में भी you are asked synthetic situations like in SRT, and यहाँ पे whatever you say you will cross current, but you're not able to analyze it. पिक्चर को एनालाइज नहीं कर पा, स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं करो, सब जगह पे रोट मेमोरी करना चाह रहे हो। नो, यू नीड सर्टेन डिग्री ऑफ एनालिसिस। न्यूज़ सुनाते हो, न्यूज़ का एनालिसिस नहीं कर पाते। एनालिसिस मतलब विश्लेषण, तो विश्लेषण की शक्ति को डेवलप करना, इट्स पॉसिबल टू डेवलप। थोड़ा टाइम लगता है बट ये पॉसिबल है, और इसका बहुत फ़ायदा होगा लाइफ में। अगर एसएसबी क्लियर हो या ना हो, इट विल हेल्प यू इन लाइफ, डू दैट। सो उसके कारण रीजनिंग स्किल्स है ना, रेजिस्टेंस टू एक्सेप्ट ओन मिस्टेक, टेंडेंसी टू रैशनलाइज और ब्लेमिंग अदर्स। बेस्ट एग्जांपल इज इलाहाबाद इज अ रिजेक्शन सेंटर। कहने का मतलब मुझ में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं, सारा गलती इलाहाबाद का। सो मिस्टेक करने से प्रॉब्लम नहीं, मिस्टेक को एक्सेप्ट ना करके उससे सीख ना लेने में बड़ा प्रॉब्लम है। सो मिस्टेक में मैंने एसएमएल में जब आओगे तो उसमें 3-4 टाइप के मिस्टेक्स बताया था। वन इज एरर ऑफ इंटेंट, एरर ऑफ जजमेंट, रिपीटेटिव मिस्टेक, हाउ टू एनालाइज द मिस्टेक, सिचुएशन एनालिसिस को कैसे करना है, कैसे अपने गलतियों के सोर्स को पता करना, सोच के पीछे के ऑपरेटिंग वैल्यू को। दीज थिंग्स आर कवर्ड इन दैट। आई रिक्वेस्ट यू डू दैट। उससे क्या होगा, आपको एक सही दिशा मिल पाएगी, वरना हम टीएटी में उलझ के रह जाएंगे। सो आई वॉन्ट टू आस्क यू, डू यू हैव द करेज टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स? Do you have the courage to learn from them and correct it, या blame करके छोड़ देते हो? So Allahabad is not a rejection center. I am unwilling to improve. That's why Allahabad has been blamed as rejection center. Allahabad में मैं भी posted था, selection होते हैं वहाँ पे, है ना। Tendency of not working even on major weaknesses and still hoping to succeed. मेजर वीकनेस, जैसे ये लाल वाला रिंग है, टूटने वाला है, लेकिन इसके बाद भी अपने मेजर वीकनेस पे भी काम नहीं करता, फिर भी वो उम्मीद लगाता है ऑफिसर बन जाएगा, और उसको उल्टी कोचिंग भी देते हैं, सुसाइड को छुपा दो। मेजर वीकनेस, कहीं पे कोर क्वालिटी छोड़ो तो कहीं जाने लायक नहीं है, उसको भी दिलासा दे रहे तो ऑफिसर बन जाएगा। वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। इसको ठीक करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, ये वीकनेस जो यहाँ पे लाल कड़ी वाला, ये दिखता नहीं है? बिल्कुल दिखता है यार। मतलब किससे आप झूठ बोल रहे हो? नो, टेंडेंसी टू प्लीज इंटरव्यूइंग ऑफिसर, यस मैन एटीट्यूड, बूट लिकिंग, मतलब चाट रहे हो। गुड मॉर्निंग सर, मैं कमिंग से लेट जाऊँ सर, पोछा मार दूँ। क्यों पोछा मार दूँ भैया, क्यों लेट जाऊँ? तुम अपने दम पे बनो ना यार, अपने काबिलियत पे बनो। 3 इडियट में देखा नहीं है, 16 हड्डियाँ टूटने के बाद आया ये एटीट्यूड। आप रखो अपनी नौकरी, मैं रखता हूँ अपना एटीट्यूड। तुम्हारे अंदर वो आत्मविश्वास, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? क्यों ये चाटुकारिता कर रहे हो? उनको पटाने जा रहे हो इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटी और साइक को? नो, वो मत करो यार। अपनी क्षमता दिखाओ, बी ओरिजिनल बोलते हो तो बी ओरिजिनल बन के दिखाओ। क्यों ये चाटू कर रहे हैं? आपको लगता है आप एक मेजर जनरल को पटा लोगे अच्छी अच्छी बातें बोल के? नो, यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। सो टेंडेंसी टू प्लीज इंटरव्यूइंग ऑफिसर, नाउ दिस आर द वर्ड्स ऑफ हिम, कि वो हाँ में हाँ मिलाता है। इवन व्हेन समटाइम इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको गलत आर्गुमेंट से काउंटर करते हैं, टू सी कि आप अपने आप पलटी मार जाते हो। आप बोलते हैं ये सर आप सही बोल रहे हो। क्यों सही बोल रहे हो? बस सर आप माई बाप हो, बस रेकमेंड कर दो। दिस हैज टू चेंज, दिस हैज टू चेंज। सो इंप्रेशन मैनेजमेंट मत करो, बूट लिकिंग मत करो, अपने दम पे बनो यार, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आएगी। 3 इडियट का डायलॉग। नेक्स्ट इज रिजिडिटी इन एटीट्यूड, इनफ्लेक्सिबिलिटी, विचारों में लचीलापन नहीं है, रिजिड है एकदम। रिजिड मतलब क्या बोलूँगा, रिजिड, सोच में लचीलापन नहीं है। इसके कारण क्या होता है, सही बात सुनते हो, सही बात समझते हो, लेकिन जब करने की बात आती हो तो गलत के साथ चले, तो कान के कच्चे हो गए। सो फ्लेक्सिबिलिटी लाना पड़ेगा विचारों में। पूरा गेम कर्मा वाचा मानसा अपने विचारों का खेल है। मैं आपके विचारों पे तो काम कर रहा हूँ, मेरी बातें आपको हिट कर रहा होगा। कोई और वीडियो ऐसा बताना जो इस तरह से हिट करता है। मेरी हर वीडियो कानों को नहीं बजाता, बुद्धि पे घंटी बजाता। आपकी बात है मेरी बुद्धि पे नहीं लगती, कानों की घंटी बजाता। इंटरव्यूइंग ऑफिसर की कान की घंटी नहीं बजाना, बुद्धि की घंटी बजाना। लेकिन आप रट के जा रहे हैं। इंप्रेशन मैनेजमेंट करोगे तो कैसे होगा? लैक ऑफ पैशन एंड डिटर्मिनेशन। नौकरी ढूंढ रहे हो,
बहुत सारे लड़के लड़कियां जो एसएसबी जा रहे हैं वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके अंदर वो पैशन नहीं है। वो पैशन बोलते हैं लेकिन मानते नहीं है ना, उनके अंदर वो है। जिसके अंदर पैशन होगा उसके अंदर एक अलग आग दिखता है, उसके अलग तैयारी का लेवल होता है। ही हैज़ द एबिलिटी टू बाउंस बैक, उसका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ बहुत ज़्यादा होगी। सो बाई सेइंग यू आर पैशनेट यू डोंट बिकम पैशनेट, यू हैव टू हैव पैशन टू बी कॉल्ड अ पैशनेट पर्सन। सो फर्स्ट फेलियर से गिव अप कर जाना, सो लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति, गिविंग अप टेंडेंसीज, नो। नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू बाउंस बैक ऑफ गिविंग अप टेंडेंसी। फेलियर्स के साथ बाउंस बैक नहीं होते, पहले ऑब्स्टिकल में ही अटक जाना। सर मेरा इंग्लिश कमजोर है, चल जाएगा ना, नहीं चलेगा यार, इंप्रूव करो ना यार। फेलियर के बाद बाउंस बैक नहीं हो पाते। सो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी टू बाउंस बैक? यू नो, यू चेंज गोल्स, नॉट द पाथ टू अचीव द गोल। गोल चेंज नहीं करना, गोल तो आपने सेट कर लिया, अप्रोच चेंज करनी है। अब तक आपने रट्टा मारा था, अब दूसरे अप्रोच पे आ जाओ एसएमएल वाले में। तो अप्रोच चेंज करो यार, गोल चेंज मत करो। बनने गए थे ऑफिसर, जवान बन के भर्ती होने जा रहे हो। अरे इतना बड़ा गोल डिफरेंस कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि आई डोंट हैव द एबिलिटी टू बाउंस बैक। लाइवलीनेस बोलते हैं ना एसएसबी में। सो मैंने ये वो सारे पॉइंट्स बता दिए सर ने मुझे लिखे। देयर आर सो मेनी ऑफ देम, आई विल कीप अपडेटिंग इट एज एंड व्हेन, जब भी होता है सर की तरफ से भी आएगा, जो मेरी तरफ से भी, मेरे भी बहुत एक्सपीरियंस है। एंड आई विल टेल यू ऑनेस्टली, बट आप में वो सच सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तो आई थैंक जनरल आदर्श भदौरिया सर कि उन्होंने स्टार्ट में ये दे दिया। तो उनके पास जो भी लड़का इंटरव्यू ऑनलाइन आए या ऑफलाइन आए या मेरे पास जो ट्रेनिंग के लिए आए, प्लीज़ मेक श्योर इन पॉइंट्स को देखने के बाद इसे रख के मत आना। बिकॉज इसका मतलब क्या है, आपको अपनी वीकनेस दिखने के बाद भी इस पर काम नहीं करना चाहते। सो आई रिक्वेस्ट टू काइंडली वर्क ऑन देम एंड इसके ऊपर फीडबैक देना कि इस वीडियो से क्या समझ में आया। बिकॉज दीज वीडियोज़, this feedback I'll convey it to sir also, and I'll also take those feedbacks and make more videos so that you can address that. So do give me a feedback कि इस वीडियो से क्या समझ में आया। एंड इसके अलावा in case you want SSB का offline classes, it is available in Pune every Monday. The fresh batch starts. To register 8275577650 is the number on which you have to contact. Right now online SSB is not available, बट ऑनलाइन में देर आर सर्टन थिंग्स अवेलेबल। ऑनलाइन में क्या क्या अवेलेबल? 2 weeks का फुल एसएमएल इज अवेलेबल ऑनलाइन, इट्स नॉट अवेलेबल ऑफलाइन बिकॉज ऑफ कोरोना रिस्ट्रिक्शन। इसके अलावा फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट इज अवेलेबल, नॉट क्लासेस, असेसमेंट एंड वीडियो बेस्ड पर्सनलाइज्ड फीडबैक भी मिलेगा। And personal interview is also available. You can take it from either General Badoria once he is ready for that online के लिए, otherwise from Wing Commander Sandeep Raj sir. So you can contact me again at 8275577650. 500% clarity इस वीडियो के ऊपर जरूर रिमार्क्स बताना क्या समझ में आया। And I hope these videos are helping you. Thank you and may God bless you. Thank you very much.